شعر بانی کی ترتیب کی کتاب ہم پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ شعر بانی کی ترتیب کی کتاب۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے معلوم ہے اور تجھ سے کوئی بید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہم آج کے دن اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب
गीत नंबर 240 है, बड़ी तसल्ली से गाना है। जो क्वायर के लोग नहीं ना आए तो उनको अब अंदर नहीं आने देना, उनको कहना कि अब अगले तो आ रहे हैं, ठीक है। बेटा आप आ जाए, आपको ये बेटी अपनी को भेजें, जिसको शौक़ था क्वायर में आने का आ जाएं, आप आएँ। इस बच्ची को लें, इसे शौक़ है क्वायर में आने का, गीत गाने का, ज़रा इसकी आवाज़ भी देख लेना सर। गीत नंबर 240। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे, मेरे कहने पे क्या है आजमाए जिसका जी चाहे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 240।
ہم آہنگی کی کسی بھی پروگرام میں ہوتا ہوں تو چونکہ یہ تسلیس کا جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ تو بہت ہی مشکل ہے. سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے. میں بڑی دلیری کے ساتھ بولتا ہوں, ذرا سنیں کوائر کے لوگ بھی. ہے تسلیس عقل انسانی سے گو باہر, یہ اس کی طرز ہے تسلیس الہی عقل انسانی سے گو باہر, صداقت تو اس کی لیکن دل جس کا جی چاہے شفا دستے کرم سے اس کے پائے, جس کا جی چاہے. تھینک یو سر. نظر صاحب کی خوبی ہے چونکہ استاد ہے لیکن ابھی تک اندر جو روح ہے وہ سیکھنے والی روح ہے. میں ان سے سیکھتا ہوں. میں نے یہ چیزیں ان سے سیکھی ہیں. ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اس کی طرز میں ٹھیک ہے سر, آپ استاد ہیں جیسے مرضی گائیں لیکن اس کو گائیں ضرور. چلیں جی دوبارہ گائیں. بیٹھے بیٹھے سے الہی عقل انسان سے طاقت عقل انسانی سے تو لیکن دل میں پائے جس کا جی چاہے, صداقت تو اس کی لیکن دل میں پائے جس کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے. اس شاید کو میں اپنے پیغام میں دے رہا ہوں. ہے کیا عید تسلیس, جس کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے, اور جس کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا اور پورا کیا. آئے ہم دعا مانگیں, شکر گزاری. کوئی بھی قدوس مہربان باپ, تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے, زندگیوں کے لیے, برکتوں کے لیے, خاص کر تیرے گھر کے لیے, میرے بندہ کے لیے, تیرے خادم کے لیے شکر کرتے ہیں. اور آج کے دن کے لیے, تسلیس کے لیے تو نے ہماری زندگی میں یہ دن دیا کہ ہم
इन ईदों को मनाएं और खुशी मनाएं और तेरे तुझ से बढ़ते हासिल करें। या खुदाम तेरा शुक्र सारे जमायत के लिए, खुदाम जो लोग यहाँ पर जमा इस मकसद के लिए आए हैं तेरा कलाम सुनने के लिए, तेरी प्रस्तुत करने के लिए, खुदाम उनको बड़ी बरकत दे। और जो लोग रास्ते में हैं और जो आने नहीं चाहते हैं, खुदाम उनको भी बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के लिए अपने बंदा को खुदाम जोर दे, आपके शोर की तरह इस्तेमाल कर, ताकि जो भी कलाम सुनाए वो बाबरकत हो और हम यहाँ से सेव होकर जाएँ। हम सब की बड़ी हिफाजत की करना, इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक बना होना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में आमीन। पादरी स्किल सरोश का लिखा हुआ ये गीत है। सब कुछ मुहैया करता है। रूह से गाना अपना जिस तरह लिखा गया ना, इसी तरह रूह में गाना। जी सर, 337 नंबर गीत है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। फरिश्तों के वसीले से हिफाजत करता है। अपने सच्चे प्यार की बारिश पर। आज मौसम अच्छा हो गया, खुदा का शुक्र अदा करें। खड़े होंगे, खुशी से गाएंगे।
काफ़ी है, ये बाजियों को जगह दें इस तरफ। अभी जगह है, आप जगह दें जो आते हैं, ताकि आप तसल्ली से बैठ सकें। मौसम भी अच्छा है, एसी वगैरह लगे हैं, आप घबराएं ना। दो ख़ास मौके हैं, ईद तस्लीस और फादर्स डे। वालिदैन के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। आज का पहला विर्द यशायाह नबी का सहीफ़ा, जो नहीं पढ़ता ना वो हाथ दिखाए ज़रा, पढ़ा करें। यशायाह नबी का सहीफ़ा, छठा बाब, पहली आयत से 8वीं आयत। शाबाश, जिसका पहले हाथ खड़ा होगा उसको दूंगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा, छठा बाब, पहली आयत से 8वीं आयत। हाथ ही कोई नहीं भाई, कोई चले मिस्र नजर। आज का दूसरा विर्द, रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, 5वां बाब, पहली आयत से 5वीं आयत। ठीक है, चलें बेटा पढ़ें। सफ़र नंबर 143, 143। यशायाह नबी का जो सहीफ़ा है उसका 665 सफ़ा है, जो बाइबल आपके सामने पड़ी है। रोमी का ख़त, 5वां बाब, पहली आयत से 5वीं आयत, 143 सफ़ा। फिर हमें गीत गाएंगे। गीत नंबर 349, हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। फिर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 16वां बाब, 12वीं आयत से 15वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 बाब, 12वीं आयत से 15वीं आयत। कोई पढ़ना चाहता है? चलें, शाबाश शाबाश, आप कम पढ़ती हैं, बहुत अच्छे, गुड। अभी से खोल लें हवाला, 2 दफ़ा पढ़ लें। किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, आप साथ वालों से पूछ लें। यशायाह नबी का सहीफ़ा, छठा बाब, पहली आयत से 8वीं आयत। रोमी के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, 5वां बाब, पहली आयत से 5वीं आयत। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, 16वां बाब, 12वीं आयत से 15वीं आयत। ये तीनों हवाले आज सुबह हम सब की नसीहत के लिए हैं। के बच्चों को कहना कि वो तैयार रहें, जो ही इश्तिहारात में दूंगा वो आ जाएं। आज 2 त्यौहार हैं, ईद तस्लीस, फादर्स डे, और आने वाले दिनों में जो ख़ास दिन हैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। सहराज़दगी, और कहत से हिफाजत का आलमी देना। कहत तब आता है जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ज़मीन खुश्क हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है, लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदा का। खुदा ने हमें
اتوار کے روز وہ چرچ میں آ کر اپنے خاندان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ خدمت کا کام کرتی تھی۔ ان کا بیٹا بھی، دونوں ماں بیٹا، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، مسز سنی، ارم، بھائی اعجاز میکارتھر اور چند ایک اور لوگ ہیں جو اس بڑی خدمت کو سر انجام دیتے۔ اب وہ خدا میں سو گئی ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی زمینی زندگی کے لیے۔ میں نے ان کے جنازے پہ ایک بات کہی ہے، غور سے سننے ذرا، ایک ہی فکر ہے، صرف کلام سنانا ہی خدمت نہیں ہے، صرف طبلہ باجا اور گا کے یہی خدمت نہیں ہے۔ جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اس کو صاف رکھتے ہیں، آ کے پھول لگا دیتے ہیں، اور بڑے کام ہیں چرچ میں، باہر روڈ کی صفائی کر دیتے ہیں، یہ بڑی اہم خدمت ہے۔ تو کلام میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جو میری خدمت کرتا ہے۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ جو میرا کلام سناتا ہے، جو میری خدمت کرتا ہے، باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو میری خدمت کرتا ہے، جو میرے گھر کی خدمت کرتا ہے، میرے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، باپ اس کی عزت کرتا ہے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا وہ خادم بھی ہوگا، خواہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اس لیے تسلی کی بات یہ ہے، آنے والے دنوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن ہے 20 تاریخ کو۔ کوئی بتا سکتا ہے پناہ گزین کیا لوگ، کون سے لوگ ہیں؟ شابش، انتخاب عالم۔ کتنے لوگ ہمارے مسیحی لوگ تھائی لینڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، کئیوں کو منع کرتا ہے نہ آ جائیں، پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ جنون، وہاں جا کے پناہ گزین ہوتے ہیں، اسائلم لیتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، آگے جانے کی تیاری ہوتی ہے، خدا کرے جائیں، لیکن زیادہ خاندانوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالا۔ سو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ سب کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے، اور پناہ گزین جو لوگ ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی اسائلم سیکرز ہیں، خدا ان کی مدد کرے، رہنمائی کرے، ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی۔ آج صبح میں ارلی ایک بات پڑھ رہا تھا، بچوں سے کہہ دیں کہ وہ تیار رہیں۔ ایک بیٹا باہر محنت کرتا ہے، کماتا ہے، 5 سال گزرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر آ جاؤں۔ ماں کہتے ہیں کہ یہ کام بھی رہتا ہے، ابھی یہ کام بھی رہتا ہے۔ پھر 2 سال کے بعد ایک لیٹر آتا ہے، کہتے ہیں ان تے بیٹی جوان ہوگی، 20 سال کی شادی بھی کرنی ہے۔ اچھا بیٹا سانو خوشی تو یہ تو آ رہے ہیں، پر پھر وہ ٹھہر جاتا ہے۔ جب 15 سال محنت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ان تے گھر بھی بن گیا ہے گا، شادی بھی ہو گئی ہے، اب میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، کہ حالات بڑے خراب نے، تھے آ کے کی کریں گا، گزارا نہیں ہونا تیرا۔ پھر وہ لیٹر لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں کبھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر کا مریض ہو گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہوں، تو جو کماتا ہوں ادھر ہی لگا دیتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں واپس آؤں۔ اس وقت آتا ہے جب وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو بیرون ملک خاندان کی بہتری کے لیے گئے ہیں، ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے پاس بھی آ کے رہے۔ زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ خدا آپ سب کو سرفرازی عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو آنے والے وقت میں ڈھیروں خوشیاں دے، آپ کو ان کی خوشیاں دکھائیں۔ فیملی بنتی تب ہے، میں اکثر کہتا ہوں گھر ہے کیا؟
जहाँ मियाँ बीवी बच्चे और घर के बुज़ुर्ग रह रहे हैं, वही घर है ना। और मसीही घर तो वो है जहाँ खुदा तरसी हो, मोहब्बत हो, प्यार हो। सो मेरी ये दरख्वास्त है कि आज के दिन को इतना लाइट ना लें। बेशक यादगारी का ये ख़ास दिन है, लेकिन हर दिन ही हमारा अहम दिन है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि दुनिया में जो इस वक्त अफरा तफरी है, खुदा रहम करे। जो जंग छिड़ गई है हमारी, तो 2 दिन में बंद हो गई थी ना, पाकिस्तान और इंडिया की। अब जो है वो थोड़ी ख़तरनाक शुरू हुई है, इसराइल और ईरान। लेकिन रास्ते में बहुत सारे मुल्क हैं जो मददगार भी हैं और जो दूसरों का साथ भी देते हैं। सो ये आग भड़क उठी है, इसलिए हमने दुआ करनी है कि खुदावंद इस जंग को रोके ताकि तबाही ना हो। आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे साथ बहुत गहरा है। और मैं जब बात करता हूँ फैमिली की, तो एक फ़िक्रा बड़ा मुझे याद आता है कि जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता। कदर करे अपने बाप की। और जो वालिदा की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तो माँओं की दुआएं ऐसी हैं, जब वो दिल से दुआ करती हैं, आंसुओं से करती हैं, अर्श हिला देती हैं, तो खुदा उनकी दुआ को सुनता है। तो इसलिए मैं इसको फैमिली डे कहूँगा। क्या कहूँगा जी? फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं? फादर एंड मदर, आई लव यू, कितना बोलते हैं हम, है ना। तो इन दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हवाले जो आपको दिए हैं तलावत कर लेते हैं। बच्चे बाहर थोड़ा नज़र आ रहे हैं, फिर मैं उनसे कहूँगा कि वो आकर आज के दिन के तलक से चंद बातें करें। आए आज का पहला विरद सुनते हैं। जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिसमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी, जिसने फरमाया,
मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज़ की कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। बाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान के कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। पाक कलाम की तिलावत पर खुदा की बरकत हो, आमीन। दोनों माइक पकड़ेंगे वो दोनों पकड़। मुझे तुमसे
اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ کلام پاک کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت۔ اور انصاف بنا اور محدود سے ہمارے لیے مصروف بھی ہوا، دوسرے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نبیوں کے بابو سے اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جو جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے ٹکٹ بنا ہے۔ اس کی دستخط ختم نہ ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں پر جو خداوند اور زندگی بننے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، اس وقت ہم بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے التجا فریاد اور منت کرتے ہیں، بچوں کو بھی اپنی پناہ ملے، والدین کو صحت و تندرستی دے تاکہ بچوں کی تربیت تیرے کلام کے مطابق کر سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی تیرے لوگ روحانی تازگی پائیں۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے چھوٹا ہوگا آج، اس لیے کہ بچوں نے اس میں ہی ایک میسج ہمیں دے دیا ہے۔ کوئی بندہ 1-2 منٹ میں بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا تھا؟ مائک دے دیں گے ہم آپ کو، میں اپنا میسج چھوٹا کروں گا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جو پلین بچوں نے کیا ہے کیا تھا؟ کوئی بتا دے، عورت مرد کوئی بھی، جنہوں سمجھ آئی ہوئے گی وہی دسے گا، مینوں تو نہیں آئی۔ باپ کی محنت کو دکھایا ہے، جو ہم قدر نہیں نہ کرتے باپ کی، تو بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے، بچوں کو کھڑا کرنا، انہیں پالنا، ان کا خیال رکھنا، اچھا اسکول، اچھا کالج، اچھی یونیورسٹی، اس کے پیچھے باپ کا بہت ہاتھ ہے۔ ہم لیڈیز سمجھتے ہیں شاید ہم گھر میں بہت کام کرتے ہیں، ہم باہر سے بھی کر کے آتے ہیں، گھر کا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں اور دھیان سے سوچ کے یہ بتائیں کہ باپ کے بغیر گھر کا کچھ نظام وہ سارا گرم ہو جاتا ہے۔ باپ کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے۔ پل تو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑھ بھی جاتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو باپ کی کمی ہے اور جو بچوں نے دکھایا اس نے ہمیں سب کو مشکل کر دیا ہے۔ اس لیے میں سارے بچوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کریں، بہت عزت کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی جان کو دکھ میں بھی ڈالیں، کیونکہ وہ بھی تو آپ کے لیے کچھ دیتے ہیں نا۔ تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے اگر آپ کو کبھی پریشانی اٹھانی پڑے، کوئی دکھ جھیلنا پڑے، دکھ اٹھانا پڑے، تو اپنے پیرنٹس کی ضرور آپ عزت کریں، دل سے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے اپنی جان کا کام کر دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، نہ گرمی دیکھتی ہیں، نہ سردی دیکھتی ہیں، نہ طوفان دیکھتی ہیں، سارے موسموں میں انہوں نے چلتے ہی رہے ہیں اور آپ کے لیے محنت کرنی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آیا، مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، میں بتا نہیں سکتی۔ چھوٹے بچے کی جو ایکٹنگ تھی کمال کر دیا اس نے۔ آپ سب کو ان بچوں سے سیکھنا چاہیے، اور جب آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں نا، ان چیزوں سے ہی بچے جو سیکھتے ہیں، اور یہاں سے بھی جب وہ بڑے ہوئے یہی چیزیں ان کی زندگی میں بھی کام آتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو سنڈے اسکول ضرور بھیجا کریں، ان کی تربیت خدا کے کام کے مطابق کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کے ساتھ کہوں گا، والے آج پڑھے گئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی کچھ کہنا ہے؟ اچھا آئیں سر، آئیں، آ جائیں سر، آ جائیں۔
सेक्रेटरी साहब ने इशारा किया। इसी में आप सबको सलाम। मेरी और मेरी टीम की तरफ से तमाम फादर्स को हैप्पी फादर डे। माइक सीधा करें। हॉलीडे के मौके पे हम तमाम फादर्स में से 3 फादर्स को गिफ्ट देते हैं पीसीए की तरफ से। सबसे पहले हम रूहानी बाप को बुलाएंगे। तेरी खैर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सामने आ जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको गिफ्ट फादर डे के मौके पर मेरा ख्याल है कि बेटा ही गिफ्ट दे तो बड़ा अच्छा लगता है। भाई श्री साहब आप सामने आएंगे और भाई साहब और फूलों का बुका देंगे और गिफ्ट भी देंगे। थैंक यू सर। आप मैं भाई सुलेमान सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सामने आए बुजुर्गों में से, और इनको गिफ्ट इन्हीं का बेटा नोमी सुलेमान देगा। वेरी गुड। आप यहीं पे खड़े होंगे एक साइड पे। थैंक यू। नोमी थैंक यू। इजाज़त बुका लेके आए। बिगर एंड बिगेस्ट। अभी आप पीछे आ रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी का सिर्फ मैं ही करता हूँ। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इतनी विषय में से मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सोच के करना पड़ता है। अगर किसी का नाम ना हो तो वो नाराज हो जाता है, अगर किसी का नाम देने तो जल्दी उठ के भी नहीं आता। इसलिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। हम तो कुर्बानी करने देता वजीन है, करीम है, सब कुछ करने के काबिल बाप है। जिस वक्त हम तेरे सामने हाजिर होते हैं, हमें कुल रहम के दरवाजे खोल दे। तेरा शुक्र जाते हैं आज के इस माने खूबसूरत दिन के लिए, खास तौर पर फादर डे के लिए। आप जितने भी फादर हैं, बाप बनाया है, तेरा शुक्र हो। आप अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, अपने लाल के इस्तेमाल करना, अपने लोगों को, बच्चों को तौफीक का अपनाना, ना सिर्फ इस दिन को मनाएं बल्कि अमली तौर पर अपने माँ बाप की इज्जत करें और बरकतें हासिल करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे आमीन आमीन। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। जो बाप है ना वो खुदा है मेरा और आपका। सबसे बड़ी बात सुन लें, बाप कौन है हमारा, और जिसके साथ खुदा है, मैं नहीं डरने का इंसान मेरा क्या कर सकता है। एक तो बाप ऊपर वाला, एक उस्ताद वो भी बाप है, पासबान वो भी बाप है, जो प्रोवाइडर है, जो आपकी ज़रूरत का ख्याल रखता है, खा वो रूहानी ज़रूरत है, तालीमी ज़रूरत है, ख़ानदानी ज़रूरत है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। रही बात दुख की, मैंने ये लफ्ज़ कहाँ से पकड़ा है। आप लोग जो आके यहाँ बोलते हैं ना, मैं आपके लफ्ज़ों में से ही कुछ ना अल्फाज ढूंढ लेता हूँ। आप में से मुझे ये कोई बताए इस दुनिया केड़ा सुखी है? कोई बंदा मुझे बता दे, दसो इस दुनिया ते केड़ा सुखी है? सारे सुखां वाला भी ते रहंदा दुखी है। जिसके पास सारी चीज़ें हैं दुनिया की, वो भी क्या है? जिथे रब रखे, सुने, जिथे रब रखे
ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। अगर आपने टेंशन से फ्री रहना ना, जैसे भी हालात हैं खुदा का शुक्र अदा करें, उस पर भरोसा रखें। बाप वही है हमारा, और जिसका बाप खुदा है उसको क्या परवाह है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आप सबसे, अपने बाप की जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया, उसके बाद वालिदैन के वसीले से हम इस दुनिया में आए। हमें इज़्ज़त करनी है, माँ का बड़ा ख्याल रखना है, इसलिए कि माँओं की दुआओं से पहाड़ हिल जाते हैं। आज का जो हवाला है वो ज़रा थोड़ी देर के लिए देखते हैं, सिर्फ 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं। ईसा नबी के सहीफे में लिखा, पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, जहाँ बम ब्लास्ट होता है, गिरता है, जहाँ मिसाइल गिरते हैं, वहाँ क्या होता है? धुआं ही धुआं होता है। लेकिन यहाँ का अजीब माहौल। तब मैं बोल उठा, कौन कह रहा है? यशाया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। होंठ कैसे नापाक होते हैं भाई? जब हम चुगलियाँ करते हैं, जब हम गलत बात सुन के आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, जब हम तहकीक भी नहीं करते कि बात सच्ची है या नहीं है, जब हमें ये भी पता है कि ये बुरी बात है, बताने से लड़ाई झगड़ा होगा, बात बढ़ेगी, फिर भी हम कर जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लोगों में जो नजिस लब है, गंदगी से भरे हुए हैं, गलत बातें कर करके इन लिप्स को, इन होंठों को गंदा किया हुआ है, मैं तो उन लोगों में बसता हूँ। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब अल अफवाज को देखा। लब, होंठ। और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों खुदा के क्या हैं? होंठ हैं, लिप्स हैं, जिनसे खुदा मेरे साथ और आपके साथ बात करता है। कहता है मैं नजिस लोगों में ही रहता हूँ जिनके लब नजिस हैं, नापाक हैं, मेरे अपने होंठ नापाक हैं। उस वक़्त क्या हुआ? सराफीम। सराफीम का जो लफ्ज़ बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, ये फरिश्तों का आला तबका है जिसका नाम सराफीम। सराफीम फरिश्तों में से जो आला दर्जे के फरिश्ते हैं, उनका नाम सराफीम, जो खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं। एक सुलगता हुआ कोयला, एक आला दर्जे का फरिश्ता उठा, उसने सुलगता हुआ जलता हुआ कोयला अपने हाथ में लिया। कहाँ से? दस्ते पनाह से, मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। यशायाह कहता है वो कोयला लेकर मेरे पास आया, उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, पस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। कोयले से ही हो गया। तकलीफ़ तो हुई होगी, दुख तो हुआ होगा। मूसा का जिक्र सुना है आपने? मूसा जब छोटा था, जो यहूदियों की किताब है उसमें लिखा है, मूसा जब छोटा था, आपको पता कि उसकी माँ ने इसको पानी में टोकरी में रख दिया था ताकि ये बचा रहे, क्योंकि उस वक़्त जो बेटा पैदा होता था उसको दाइयाँ मार देती थी, चूँकि वो सीरी में थे। इस बच्चे को किस तरह से खुदा ने महफूज रखा और उसी घर में चला गया जो बादशाह का घर था, जिसने ऑर्डर किया था। और ये छोटा था तो बादशाह के साथ खेल रहा था, तो इसने बादशाह का जो ताज था वो गिरा दिया। तो जो वज़ीर मशीर होते हैं ना, उन्होंने कहा बादशाह ये बहुत गलत काम
किया इस बच्चे, इसको तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। गौर से सुने, सादा बात है, आपको समझ आएगी बच्चों के साथ किस तरह से रहते हैं और बच्चे किस तरह से करते हैं। उन्होंने क्या किया जाए, और उन्होंने कहा जी इस बच्चे ने जानबूझ के बादशाह का जो ताज है उसको गिराया। तो एक ने मशवरा दिया मशीर के बादशाह सलामत, क्या है, नहीं समझ सकते कि उसने ये जानबूझ के किया है या उससे हो गया है। तो ऐसा किया जाए, दो चीज़ें मकदार रख दी जाए। अगर ये बच्चा सोने की तरफ, चमकती हुई चीज़ की तरफ चला गया तो इसका मतलब है कि इसने जानबूझ के किया होगा। तो अगर ये कोयले की तरफ चला गया जहाँ से उसी तरह की लाइट निकल रही है, आप कोयला जब आप पका देते हैं ना तो कैसा हो जाता है, सुर्ख चमकता है। तो फिर खुद ही पता चल जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है। उन्होंने वो दो चीज़ें रखी और बच्चे को वहाँ से छोड़ दिया और वो रेंगता हुआ चलता हुआ उन दोनों चीज़ों की तरफ देख रहा था। वो कोयले की तरफ चला गया, उसने कोयला पकड़ के मुंह में रख लिया, उसको छुड़ा दिया गया। तो समझे कि बच्चे को कोई समझ जाए। अगर आपने बाइबल को सही तरह से सुना और पढ़ा हो तो हारून और मूसा जब खड़े थे तो मूसा ने अपने भाई से कहा कि यार मैं तो तोतला हूँ, मैं तो सही बात नहीं कर सकता। तो खुदा ने कहा तेरी ज़ुबान ये बनेगा। तो जो स्कॉलर हैं, जो थियोलॉजियन हैं, जो फ़लसफ़ी हैं, जो कलाम को समझते हैं, वो कहते हैं कि यही एक वजह थी कि जब मूसा छोटा था वही कोयला उसने जब अपनी ज़ुबान पे रख लिया था, उसकी वजह से उसकी ज़ुबान को ये नुकसान पहुंचा, इसलिए वो तोतला था। बच्चे खुदा की तरफ से दी हुई एक बड़ी बरकत है। वो चमकती हुई चीज़ की तरफ ज़रूर जाते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि ये नुकसानदेह है या ये फ़ायदेमंद है। इन बच्चों को इस वक्त जिस चीज़ में ज़्यादा कशिश नज़र आती है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आज का मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इसमें बड़ी कशिश है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत गलत है। ये हमारे बच्चों को हमसे दूर कर रहा है, मियाँ बीवी को भी एक दूसरे से दूर कर रहा है। दोनों बैठे हो ना तो वो अपने मोबाइल पे लगी होती, मैं अपने मोबाइल पे लगा होता हूँ, बात कम करते हैं फिर हम। तो बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए इसको साइड पे रख दें। जब बंद करके तो देखे 2 दिन कुछ नहीं होता। अभी 2 दिन में मोबाइल की बंद हुआ है बिजली ना होने की वजह से। ऐसी चीज़ों से गुरेज करें और मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी को अपनाएं जिसकी वजह से आज सारा कुछ मौजूद है। अगले हिस्से में मैं जा रहा हूँ, गौर से सुनने। खुदा के बंदा यशायाह ने कहा कि मैं हाज़िर हूँ इसकी खिदमत के लिए। उसने फरमाया कि जा फिर इन लोगों में जिनको तू कहता है कि इनके लब नजिस हैं, नापाक हैं, जा। फरमाया कि जा उन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं। आज के बच्चे सुनते ज़रूर है ना, आप वो लगे होते हैं ना तो आवाज़ देते हैं, सुनता होता है लेकिन वो जवाब नहीं देता। सुना करो पर समझो नहीं, देखा करो पर बूझो नहीं। तो इन लोगों के दिलों को चरवा दे, उनके कानों को भारी कर दे, उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें
अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं, ताकि शिफा पाएं। शिफा पाएं, शिफा पाने के लिए भी ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो आज के दौर में सब कुछ है, आंखें हैं, दिमाग हैं, कान हैं, सब कुछ है, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन ना हमें नज़र आता फिर कहने साड़ी मत मारी गई, सानू पता नहीं चलिया। मत नहीं मारी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी गलतियाँ हैं। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ, चंद बातें मैंने आपके लिए लिखी हैं कि वही माँ बाप जिन्होंने हमें सिखाया होता है, पढ़ाया होता है, सबक दिया होता है, उन्हीं को फिर आप आजकल ख़ास तौर पे, हमारे अंदर तो ये जुर्रत नहीं थी कि अपने बाप को, अपनी माँ को हम इस तरह की बात करें। आज के बच्चे करते हैं। क्या करते हैं भला? ओ माँ जी तानू नहीं पता, ओ डैड तानू नहीं पता। और ये गलत है जो आप कर रहे हैं। माँ जी आपने ये कह दिया है, आपको पता नहीं है, ऐसे नहीं करते। पापा जी आप वहाँ क्यों गए? अब्बा जी फिर आपने गड़बड़ कर दिया, फिर काम खराब कर दिया। माँ जी मैंने कितनी बार समझाया। बच्चों आप जानते हैं कि जब आप इस तरह की बातें माँ बाप के साथ करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, हमारे घरों के बच्चे हैं जो अपनी माँ को इस तरह कह देते हैं, अपने बाप को भी इस तरह कह देते हैं। तो नहीं पता हमारा ये जो बड़ापन है ना, सियानापन, आजकल के बच्चों से, नौजवानों से कह रहा हूँ, हमारे अंदर को एहसास से मार देता है। आपके अंदर वो एहसास ख़त्म हो जाता है, वो एहसास जिससे हम ये महसूस भी ना कर सकें कि आपके बाप की, आपकी माँ की छोटी सी खुशी, छोटा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्की सी मुस्कुराहट उन्हें निहाल करती है, खुश करती है। उनके लिए यही काफ़ी होती है। उन्हें अख्तियार से महरूम ना करें। क्या अख्तियार है माँ बाप के पास जो खुदा ने दिया है? बच्चे आजकल अपने माँ बाप से ये भी अख्तियार छीन लेते हैं, सुनने का अख्तियार, डांटने का अख्तियार, प्यार करने का अख्तियार। यही सब चीज़ें उनकी खुशी का सबब बनती हैं। नौजवान सुन रहे हैं भाई? नौजवानों, बच्चों, आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हमारे अपने घर में ऐसा है, आप ना माने हम मान लेते हैं। दोबारा बताना चाहता हूँ, ये अख्तियार उनसे ना छीने। छोटी सी खुशियाँ उनकी, किसमें? आप उन्हें थोड़ा सा प्यार दें, हल्की सी मुस्कुराहट दें उन्हें, उनसे सुनने का अख्तियार। और नहीं 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 नहीं, सुनने का अख्तियार ना उनसे छीने, डांटने का अख्तियार ना छीने। अगर मैं डांटता हूँ तो माँ कहते कि हर वेले दे पिछे ही पे रहंदे हो तुसी। ओ भाई डांट रहे थे बाप को। छड़ी से भी बच्चा मर नहीं जाता, सीखता है। ये छोटी छोटी खुशियाँ, यही सब कुछ उनकी खुशी है। ये छोटी सी तो हमारी दुनिया है, इसमें उनसे ये इख्तियार ना छीनें। माँ को डांटने दें, फिर बाद में हम रोते हैं, चलाते हैं। एक जनाजा जा रहा था, बारिश आ गई एकदम तेज़ी से, सब लोग वो मैयत भी छोड़ के चले गए, साइडों पे हो गए थे। घर के लोग उसको संभाल रहे थे, उस पर प्लास्टिक की चीज़ें डाल रहे थे। इसलिए भाइयों, जिन लोगों को, बच्चों आप समझ रहे हैं ना, वो आपके बड़े ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, आपके करीबी हैं, वो तो मैयत भी छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप नहीं कभी छोड़ता। इनसे ये इख्तियार मत ढूंढे कि वो आपको डांटे भी ना। इसलिए इस ज़िंदगी को खुदा उनके खौफ में रहकर बसर करें। इस ज़िंदगी में वालिदैन खुदा की तरफ से दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। पास्ट जो गुज़र गया ज़माना,
वो वेस्ट पेपर है, उसकी तरफ ना ध्यान दिया करें। जो माजी है वो गुजर गया, वो वेस्ट हो गया। जो हाल है, प्रेजेंट है, आप समझे में वो सही न्यूज़पेपर है, आपके बारे में बता रहा है कि आप क्या चीज़ हैं, नज़र आता होता सबको। और जो आपका फ्यूचर है वो क्वेश्चन पेपर है, जो इम्तिहानों में आता है कि आपने क्या किया अपने माँ बाप के साथ। अगर आपने अपने माँ बाप को इज़्ज़त दी होगी तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। अगर आपने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा तो आपको भी दुख ही मिलेगा। सुख दिया होगा तो आपको सुख मिलेगा। बड़ों को इज़्ज़त दी होगी तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। इसलिए खुदावंद के कलाम में ये जो हवाला पढ़ा गया है, मैं इसमें से एक दो लफ्ज़ लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए बरकत का सबब भी बनती हैं। निकाले ज़रा रोमियो का ख़त, 5वां बाब, 2-3 चीज़ें हैं बस ख़ास, इसके बाद मैं अपना मैसेज क्लोज़ करूँगा क्योंकि आप बड़ी जल्दी थक जाते हैं। 5वां बाब, पहली 5 आयतें जो बेटी ने पढ़ी हैं, वहाँ पे 3री आयत में लिखा है सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें। मुसीबतों में भी, इसलिए मैं कह रहा था कि कौन है बंदा जो दुख से खाली है। ये जान कर के मुसीबत में सब्र पैदा होता है। अब ज़रा सब्र अगर सीखना है करना तो मुसीबतों में सब्र पैदा होगा, फिर सब्र से पुख्तगी पैदा होगी, पुख्तगी से उम्मीद पैदा होगी, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। ये है ईद तसलीस। आसमान भी खुल गया, आवाज़ भी आ गई, बाप भी मौजूद, बेटा भी मौजूद, रूहुल कुद्स भी मौजूद। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, काश आज के बच्चों के बारे में वालिदैन ये कह सकें, जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह, ऐन वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह बेदीनों की खातर हुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से को अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए को अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा मेरा और आपका बाप, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। किसकी खातर? मेरी और आपकी खातर मुआ। और फिर उसने जाते दफ़ा कहा कि मैं रूहुल कुद्स दूसरा मददगार भेजूँगा जो तुम्हें राह और हक़ की बात बताएगा, ताकि आप खुदावंद की रूह की हिदायत के मुताबिक चलें और ज़िंदगी में बरकत और खुशी हासिल करें। मेरी ये दुआ है कि आज के दिन के वसीले से, आज की गुफ्तगू के वसीले से, ईद तसलीस के वसीला से, फादर्स डे के हवाले से खुदावंद आप सबको बरकत दे और ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आपको बरकत दे। ज़बूर नंबर 122 निकालें। दुआ मंगो ए मिल के सब दम बदम, सलामत रहे शहर यरूशलेम। चूँकि आजकल के लोग दिमाग से कम सोचते हैं। किससे ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल? मैदे से ना, खाने पीने की चीज़ों से, मैदे से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। हम ये ज़बूर गाएंगे क्योंकि यरूशलेम में भी मज़ाइल गिरे हैं, ठीक है। दुआ मंगोए मिल के सब दम बदम, सलामत रहे शहर। अपने हदिया नजराने शुक्र
ہم بڑی خوشی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ساری حلیمی کے ساتھ یہ ہدیے نذرانی شکر گزاریاں حضور گزراتے ہیں. اپنا ہاتھ بڑھائیں نے اپنے حضور قبول فرما. ہم سب کو بھی اپنے حضور قبول کر. ہماری خطاؤں غلطیوں قصوروں کو معاف کر. اس ہدیے کی تقدیس کر. گو کہ اے باپ ہم سب نالائق ہیں, پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے عاجزی انکساری حلیمی فروتنی کے ساتھ اس سے منت کرتے ہیں. ان ہدیوں کو اپنے حضور قبول فرما. تیرے جلال کے لیے استعمال ہو. یہ سنا آمین. جماعت بیٹھ جائے. شہربانی کی ترتیب کی کتاب صفحہ نمبر 13-14. آئیے سو اچھے سردار کاہن جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو. روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر. آئیے سو اپنے رلوس کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس مے کی بھی تقدیس کر تاکہ یہ ہم سب کے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں, کیونکہ تیرے وسیلے سے آج یسوع کی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے. خداوند تمہارے ساتھ ہو. اپنے دلال میں بالا پر لگاؤ. ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں. یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں. اے خدا مقدس باپ قادر مطلق ازلی خدا, ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. نجات کے بندوبست کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. فادرس ڈے عید تثلیث کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ڈائسس آف رائیونڈ کے لیے, بشپ آف رائیونڈ کے لیے, تمام خادموں کے لیے, تمام مسیحی اداروں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں. قدوس قدوس واقعی قدوس واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ, تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے
अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र रखा, कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, मिसेस शरीफा यकूब दास पर रहम कर, शनाज पर, गुड्डू हकीम, मास्टर विलियम जेम्स, मिसेस मार्था इमैनुअल, नईम बरकत, शहनाज और दूसरे तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं, उन सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जुल्म का इकरार करते हैं, हम तेरे पीछे अमल का इकरार करते हैं, आए हमसे ही तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदाम की मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदाम, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहलुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएँ, और हम उसमें और वह हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बरे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बरे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम इत्मीनान की दुआ दें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। इत्मीनान की बड़ी ज़रूरत है। जो इस वक्त पूरी जिसका फुकदान है, हम सुलह और सलामती और इत्मीनान खुदावंद हम सबको अता करे। खुदावंद यीशु मसीह का बदन है और खुदावंद यीशु मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, इस वक्त दस्तरखान तैयार है। बड़ी तरतीब के साथ हलीमी के साथ आएँ और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताज़गी पाएँ। जो गैलरी वाले लोग हैं बैठे रहें, हम आपके पास आएंगे। साक्रमेंट में शरीक हुए हैं तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कादर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं
اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے. ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جان میں اسی طرح تیری فرمانداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا ابدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ تمہارے دل اور خیال خدا اس کے بیٹے ہمارے خداوند کی مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ ہم سب کے تمام عزیز و کار رشتہ دار مہربانی بچوں خدا کی خاتون کے ساتھ اور جن بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے. خاندانی مسیحی خاندانی کیمپ جو کیا مبارک مری میں سلام کرتے ہیں 26 جولائی سے 30 جولائی یہاں سے جائے گی 26 کو جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہاں کی رہائش اور خوراک کے لیے 5,200 روپے فیس ہے جو ہم وہاں دیتے ہیں. جو لوگ جانا چاہتے ہیں ابھی اس سے تیاری کریں. امن بچوں کے لیے آپ کو شکر ادا کرتے ہیں جو پیپرز ہو رہے ہیں دعا کر خدا بچوں کو کامیابی سے بنا کرے. جن لوگوں میں افسوس ہوا ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں دعا کرتے ہیں